Great. So, before we begin the circle, would like to read the guidelines. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. And today we have a very special guest with us, Neha. She's looking at everyone today. I think she has got a lot of followers and fans here, and why not looking at her so inspiring and courageous journey. And हमेशा उसको उस तरफ देखा है when she is talking about other people experiences and spreading smiles, no matter what condition she is in. I think I don't even need to look at Neha's introduction, but for everyone's benefit, I will read Neha's journey. So Neha was diagnosed with breast cancer in 2016 when pregnant with her second born. She noticed a lump in her breast, but it was first diagnosed as metastasis. The doctor prescribed some medication, but didn't resolve. The doctor asked for sonography, but even it could not diagnose as cancer. Later, during the biopsy, breast cancer was detected. Some doctors asked her to abort her second kid. But as she went on a multi-specialty hospital in Mumbai, the doctor asked her not to abort the kid. She then underwent 3 cycles of chemotherapy. Her delivery was very successful. And later in 2020, she was diagnosed with ovarian cancer and successfully underwent treatment for the same. Neha considers her late breast cancer diagnosis a boon rather than a ban. This divine intervention allowed her second child to come to life. And as you can clearly see from her introduction, that how positive and positive, optimistic and courageous person she is. डिफिकल्टीज सबको आती है, बुरे टाइम से हम सब निकलते हैं, बट उस डिफिकल्टी को हमें एक अपॉर्चुनिटी में या फिर पर्पस में कैसे कन्वर्ट करना है, that is what something that I learn from Neha every time. So Neha, would love to hear from you about your journey, how it began, and anything that you think will benefit everyone else who are diagnosed and going through the same. Thank you. I am requesting you to unmute. Sorry. Thank you. Hello everyone. Thank you so much Dimpali for inviting me here as a speaker. और आप सभी को भी थैंक यू जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है इस जर्नी में. So starting with my journey, I am sharing my journey as a warrior because कैंसर सर्वाइवर तो एक जो शुरुआती एक मुझे टैग मिला था, लेकिन उससे मैंने सीखा है कि यस आई एम अ वॉरियर. सो मैं बताना चाहूंगी फरवरी 2016 की जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद मेरा 3 महीने का जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होना था, और डॉक्टर से हमने पूछ लिया था कि हम ट्रैवल कर सकते हैं क्या फ्लाइट से. तो मेरे मम्मी पापा बॉम्बे रहते हैं, तो उस टाइम पे मैंने मतलब अप्रैल एंड में बॉम्बे जाने का डिसीजन लिया. तो उस टाइम मेरा 4th मंथ लग चुका था. तो जब मेरा 4th मंथ लगा तो हम बॉम्बे गए. तो वहां जाने के अराउंड 1 वीक मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और 8 to 10 डेज बाद मुझे यहाँ राइट साइड में कुछ ऐसा एक लम्प फील हुआ. तो वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं लगा. तो मैंने मेरी मम्मी से शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नेहा, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, प्रेगनेंसी में हो जाता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो वो बात तो उन्होंने भी भूल गए और मैंने भी लेट गो कर दी. फिर 5-1 दिन बाद मुझे फिर कुछ फील हुआ, और जो मुझे ऐसा लगा कि इस बार सीरियसली मुझे कुछ इरिटेट कर रहा था कुछ चीज. तो ये बात मेरे पापा तक गई. तो पापा ने जब कहा कि नहीं ये तुम्हारा वहम है, तुम इसे भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है. तो वह ऐसे करते करते अराउंड 25 to 30 डेज जो मैं बॉम्बे रही थी, तो मम्मी पापा ने डॉक्टर क्या नहीं दिखाया. तो जब मैं इंदौर आई तो मेरा अराउंड 5th मंथ कंप्लीट होने वाला था. तो जैसे 10 जून का मेरा फ्लाइट था, और 11 जून को मुझे हॉस्पिटल जाना ही था दिखाने के लिए, फॉलोअप के लिए. तो जब मैं मेरी डॉक्टर के पास गई, तो इंदौर की टॉप मोस्ट डॉक्टर में आती है वो भी, ऐसा नहीं कहेंगे, पर उन्होंने जब देखा तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं ये मेस्टाइटिस है, जिसे दूध की गठाने बोलते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में किसी किसी को बन जाती है. तो उन्होंने वो बात वहीं उन्होंने भी कवर अप कर दी,
और कुछ मेडिकेशन दे दिया और एक सोनोग्राफी बोल दी। अभी सोनोग्राफी करवाई है तो सोनोग्राफी में भी वही मेस्टाइटिस बता दिया उस डॉक्टर ने। तो चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको कोई ऐसे, आज के टाइम पे शायद इतनी अवेयरनेस है कि अगर कुछ लंप है या लंप से रिलेटेड कोई भी अब कुछ भी हो जाता है तो हमें दिमाग में बीमारी का, आज के टाइम पे लोग की अवेयरनेस हो गई है कि कुछ बीमारी हो गई है। बट जब आपका डॉक्टर है, आपकी गायनेक आपको इतना श्योरिटी दे रही है तो हम उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते। तो यही गलती हमारी भी रही। तो जैसे ही उन्होंने हमें मेडिकेशन दिया था तो वो कुछ सप्रेस करने का था लम को, तो वो जब मतलब अपना मेडिसिन मेरी शुरू हुई है तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। और उस टाइम तक मेरा 6 मंथ लग चुका था प्रेगनेंसी का। तो और बड़ा बेटा मेरा 5 साल का था उस टाइम, मैं बताना भूल गई। तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। तो जब एकदम अचानक से एक दिन मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज बहुत ग्रो कर गई है और काफी बड़ी लग के मुझे एकदम डर सा बैठ गया था। और उस टाइम से मतलब मुझे ऐसा फील हो गया था यस अब कुछ है। और मतलब मैं ना अंदर घुटने लग गई थी, अंदर टेंशन होने लग गई थी, रोने लग गई थी कि कुछ है। तो जब हमने फिर से विजिट किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे हस्बैंड को कि अब ना रोहित हम इसकी एक ट्रू कट बायोप्सी करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये किस टाइप की गठान है। तो जब बायोप्सी की बात उठी तो फ्रैंकली कहूंगी मुझे उस टाइम मैंने बायोप्सी नहीं सुनी थी कि बायोप्सी क्या होती है, कैसे होती है, कुछ भी नहीं पता। बट जैसे अब हस्बैंड के सामने आई थी तो कुछ फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में आपके डॉक्टर्स होते हैं, सबने सजेस्ट किया कि अब हम इसे नहीं दिखाएंगे, हम ऑनको सर्जन को दिखाएंगे। तो फिर हमें मेरे भैया आ गए थे बॉम्बे से। और नहीं, उसके पहले मेरा FNSC का उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि FNSC करवाइए। तो वो एक FNSC जब डॉक्टर को तो समझ में आ गया था कि कुछ है, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को मतलब कर दिया था कि इशारा कि कुछ है। तो FNSC तक भी मुझे किसी ने नहीं बताया। और जिस दिन FNSC हुई वो मेरे लिए एक थोड़ा पेनफुल इसलिए था क्योंकि 6 मंथ्स की लाइक एक टर्मी पूरी 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी क्या होती है और उसमें आपकी FNSC होना ब्रेस्ट की, तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क था। जिसने करी थी वो भी बहुत शॉकिंग थे और वो भी थोड़े ऐसे थे कि वो मुझे समझा रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट यस, वो एक पार्ट था, FNSC होती है, तो वो हुई मेरी। और जिस दिन FNSC की रिपोर्ट आनी थी उसके 2 दिन पहले मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया हैं, उन्हें पता चल गया था कि मुझे है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो वो आए और यहाँ पे आके जब हमें डॉक्टर जिस गायनेक के पास एक बार हम मिलने गए थे, तो उनका ऐसा था कि नेहा आपको कैंसर हुआ है और अभी आपने अंदर वाले बेबी को कुछ भी नहीं देखा है, तो अभी आप इतनी ममता मत रखिए, अभी हमें आपकी चिंता है, तो अभी हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। मतलब ऑल ऑफ सडन आपके सामने एक ऐसी बात रखी गई है, आपको कैंसर है, और जिस चीज का डॉक्टर 6 महीने से इलाज कर रही थी वो डॉक्टर एकदम आपको कह देती कि आप अंदर वाले बेबी से ममता मत रखिए। तो वो एक मेरे लिए बहुत पेनफुल था। फिर जब मुझे पता चला उसी दिन पूरी फैमिली को भी पता चला। अब ये था कि मेरे जो भैया हैं और मेरे हस्बैंड है, दोनों ने डिसीजन लिया कि बॉम्बे हम ट्रीटमेंट करवाएंगे क्योंकि मम्मी पापा भी बॉम्बे रहते हैं, तो एक वो भी बेनिफिट था मेरे साथ। तो बॉम्बे जिस दिन जाना था, जिस शाम को आज पता चला है, और नेक्स्ट डे ये था कि हमें निकलना है 7 बजे। अब उस टाइम ये हालत थी मेरी, ये तो रहता ही है कि कैंसर जिस दिन डायग्नोज हुआ है तो वो कहने में आता है कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, इस टाइप की। तो क्या था, सिर्फ रोना था क्योंकि उस टाइम पे आपको आपके बड़े बेटे को 5 साल का है, उसको आपको बॉम्बे यहाँ छोड़ के जाना था। और डॉक्टर्स के हिसाब से कितने डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि आपको अबॉर्शन करवाना रहेगा। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए एक्सेप्ट करने के लिए। फिर भी मैं बॉम्बे गई, वहां मेरी फैमिली है, मेरे छोटे भाई भी आ गए थे, भाभी वगैरह, मम्मी पापा सब लोग थे। तो उस दिन वहां इन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी सबको, डॉक्टर्स को काफी शेयरिंग कर ली थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काफी लोगों ने कहा था कि अबॉर्शन करवाइए, पर डॉक्टर अडवाणी जी का किसी ने बताया था और हम वहां गए थे। तो उनसे जब मिले तो उनका एक सेइंग था कि ऐसे हाथ रखे कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा। तो वो जो एक उन्होंने एक मुझे होप दिखाई थी। तो उस टाइम मुझे कीमोथेरेपी नहीं पता थी, कीमोथेरेपी क्या होती है सीरियसली नहीं कुछ पता था इस बारे में।
और उसी दिन मतलब उन्होंने कह दिया कि हम प्रेगनेंसी में आपको 3 कीमो देंगे। तो उसी दिन उन्होंने वहां के डे केयर में लिखवा भी दिया, नाम भी हो गया रजिस्टर, वहीं की वहीं मेरा कीमो लग भी गया। मेरे पेरेंट्स वहां आ रहे हैं और उसके बाद वहां पे ऑब्वियसली वहां सारे लोग मेरे भैया, दोनों भाई वगैरह सब वहीं थे, हस्बैंड वहीं थे। और कीमोथेरेपी स्टार्ट हो रही है ना, तो मैं सबको ये बोल रही थी नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। और पापा आके बहुत रो रहे थे और एक रेड वाइन बॉटल मुझे चढ़ रही थी और मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये नहीं पता ना कीमोथेरेपी के बाद तकलीफ होती है। बट यस, उसके बाद मुझे 3 कीमो प्रेगनेंसी में दिए गए। उसके बाद मेरा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी बहुत सेफली हुई। और उस टाइम मतलब 3 कीमो में भी एक मेरी मम्मा की सेइंग थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, और अगर इस बच्चे ने किस्मत लिखवा के आया है तो ये बच्चा जरूर आएगा इस दुनिया में, और नहीं लिखवा के आया होगा तो जो भी भगवान ने सोचा होगा वो जरूर होगा। तो वो एक उन्होंने जो एक होप दिखाया था, और काफी पॉजिटिविटी, जब आपके आसपास इतने लोग होते हैं पॉजिटिविटी देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जंग हो आप जीत ही जाएंगे। तो जब मेरा डिलीवरी हुआ उस दिन मैं बहुत रोई। तो मेरी डॉक्टर मुझे कह रही थी कि नेहा मैंने कीमो में रोते हुए नहीं देखा, आज क्यों रो रही हो। मुझे ऐसा था कि नहीं यार, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक रिजल्ट आने वाला है कि बच्चा कैसा आएगा। क्योंकि कीमो था, सुन रखा था, लोग जो भी सुनते थे आसपास के कि यार कीमो लग गया है, बेबी कैसा होगा। तो वो एक बहुत बड़ा टेंशन था। जिस दिन डिलीवरी हुई तो उस दिन मेरे पापा बोले थे कि नेहा ने आधी जंग जीत ली है, नेहा आधी जंग और जीत जाएगी आगे की। तो ऐसे करके मेरा डिलीवरी हुआ। और डॉक्टर ने मुझे ये पहले ही बता दिया था कि आपका 3 कीमो जो लगेगा 21 डेज के गैप में लगेगा, और जब आपका 3rd कीमो लगेगा उसके 15 डेज बाद आपको डिलीवरी करवानी ही करवानी है, और अगेन उसके आफ्टर उसके 15 डेज बाद आपको आगे का ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो ऐसे मेरा प्रेगनेंसी में 3 कीमो लगे, फिर डिलीवरी हुआ, फिर आगे के मुझे 3 कीमो लगे। उसके बाद मेरा ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हुआ, और उसके बाद आगे मैं इंदौर आ गई थी। तो इंदौर आने के बाद मैंने मेरा रेडिएशन लिया। रेडिएशन के दौरान साथ मुझे एक मैं ट्रिपल पॉजिटिव रही हूँ, ER PR पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव। तो उसमें मुझे हर्सेप्टिन के 17 कीमो वो भी मुझे साथ में लगते रहे। और एक मुझे ल्यूप्रॉन इंजेक्शन था। डिलीवरी का मेरा टाइम था, और यूजुअली कीमोथेरेपी के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, बट मेरे फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही। तो इस चक्कर में डॉक्टर ने ल्यूप्रॉन साथों साथ, मतलब उसमें साथ में ट्रीटमेंट के साथ वो एक इंजेक्शन भी शुरू कर दिया था। वो 3 मंथ्स में मुझे एक इंजेक्शन लगता था, जो मुझे 2019 दिसंबर तक चला है। तो इस बीच में मैंने एक टेमोक्सीफेन लिया था, वो मुझे 5 साल के लिए बोल दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 4 ही साल खाई थी वो। उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी आपको। लेकिन ये एक मेरा था ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो मेरा 2016 में रहा था। अभी उसके बाद मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे अच्छे हुए लाइफ के, तो मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहले कि लाइफ में पहले भी आप इतना चीज, कैंसर ने बहुत कुछ सिखाया है, और इसलिए मैं हमेशा कैंसर को थैंक यू भी बोलती हूँ कि कैंसर ने जो चीज मैं पहले कभी फील ही नहीं करा, सिर्फ अपने अपने तक या अपने घर तक, इस टाइप की बातें अब आप दूसरों के लिए सोचते हो। और ऐसे हुआ कि ग्रैटिट्यूड फील करना मैंने कैंसर के बाद सीखा है। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड तो ये था कि मेरे बच्चे, मतलब ये एक ब्लेसिंग ही थी जो भगवान ने, मतलब 4th मंथ से जो फील हो गई थी, जो मम्मी पापा ने डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया, वो 6 मंथ्स में पकड़ी गई। चाहे वो कुछ भी कह लीजिए, मेस्टाइटिस का नाम हो गया, लेकिन वो एक था कि वो एक ब्लेसिंग थी कि मेरे बच्चे को, छोटा आरुष नाम है उसका, उसको इस वर्ल्ड में आना था। तो 4th मंथ से 6 मंथ तक ये पीरियड खिंच गया। सेकेंड थिंग ये कि आपका हस्बैंड है, आपके फैमिली है, पूरी फैमिली, इन लॉज है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई भाभी, दोनों मेरे ब्रदर्स, मतलब एक ब्लेसिंग है कि जिन्होंने एक टाइम भी मतलब मुझे फील नहीं होने दिया कि यार कुछ नहीं है। उनका एक ही रहता था, कोई नहीं, ये टाइम निकल जाएगा। मतलब वो जॉब करते और ऑफिस से कॉल आता था मम्मी के पास, मुझे आज भी याद है कि नेहा ने कितना पानी पिया, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कहते थे कि इसको 5 लीटर पानी पिलाना है, इसको 2 लीटर मतलब लिक्विड जाना है, इसको जाना है, इसको इतना ये नारियल पानी जाना है। तो उनका कॉल आता था ऑफिस से कि नेहा ने पानी कितना पिया। तो ये एक ब्लेसिंग है। और उसके साथ एक और चीज
मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। रेडिएशन के दौरान मैं एक बहुत ही प्यारी लड़की से मिली थी, कोमल। उसको मैं आज भी बोलती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उससे मिलना हुआ। उसके बाद मैं पूरी संगिनी से मिली, उसमें इतनी दीदी हैं, इतने लोगों का प्यार मिला। अनुराधा आंटी का बताऊंगी। अनुराधा आंटी से जब मैं मिली थी तो मुझे पता ही नहीं था कि वो एक कैजुअल मीटिंग है या फिर एक काउंसलिंग के लिए आंटी ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया था। बट यस, मैं जब मिली थी आंटी से तो सोचा नहीं था कि इतना कुछ बॉन्ड हो जाएगा आंटी के और मेरे बीच में, कि वो एक माँ बेटी का, कि एक मुझे एक और माँ मिल गई उस रूम में। तो वो ऐसे तो उनका कनेक्शन सभी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आंटी मिली और आंटी से सब लोग मिले। फिर एक मैं कुलदीप भैया को थैंक यू बोलूंगी, जिनसे मुझे जेनॉनको की शुरुआत हुई, जिसमें मेरी जेनॉनको में मैंने डिम्पल दी से मिली। डिम्पल दी के अलावा मैं बहुत लोगों से मिली, जिनको यहाँ भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, जिनके जिनको मैं ना हमेशा जरा सा कुछ होता है मैं बोर करने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि यार भैया दीदी ये मुझे तकलीफ हो रही है। तो ऐसे मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और ऐसे करते करते मेरा ये टाइम निकल गया 2019 तक का, बहुत इजीली, जिसको कहना चाहिए कि मतलब ट्रीटमेंट अपनी जगह है, बट आपने कभी उसको अपने दिमाग तक हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे करते करते मैं 2019 तक, और फिर 2020 में कोविड लग गया। 19 तक मेरा पूरा फॉलो हर 6 महीने में बॉम्बे होता था। और जब 2020 में जब कोविड लगा था तो कोविड में ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने हालांकि 1 साल बाद ही मुझे ट्रीटमेंट फॉलोअप के लिए बुलाया था। बट वैसे मैं इंदौर में कुछ टेस्ट वगैरह करवाती रहती थी बीच में तब भी। बट वो पीक टाइम था कोविड का, तो मैं इंदौर में भी कुछ नहीं करवा पाई और मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं थी। तो जब मैं 2020 में दिसंबर में बॉम्बे गई थी, और वो भी मैं बहुत ही कैजुअली गई थी, कि मुझे ऐसा हो गया था कि क्योंकि हर 6 महीने में एक आदत पड़ गई थी बॉम्बे जाने की, शॉपिंग करने की। तो इस बार बहुत लंबा साल गुजर गया था तो ऐसा था कि इस बार बॉम्बे जाना है, शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि फॉलोअप था और कोविड भी बहुत हो गया था उस टाइम, कम हो गया था। तो कभी प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं होती है, हमेशा लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट होना चाहिए हमें। तो जब मैं बॉम्बे गई, वहां जाकर जब मेरा फॉलोअप में हम गए, तो वो एक सरप्राइज और क्या कह लीजिए शॉकिंग न्यूज एक अलग वेट कर रही थी मेरा। उस टाइम मेरा सोनोग्राफी होना था, तो सोनोग्राफी में डॉक्टर को कुछ फील हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनल सोनोग्राफी करेंगे। फिर उन्होंने वो करी, तो उन्होंने उसमें भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने सीटी स्कैन बोल दिया। मतलब उस घर से आप निकले हैं 4 घंटे का सोच के कि डॉक्टर्स का बस थोड़ा सा काम है, एक फॉलोअप है, निपटा देंगे, और वहां आप 6-8 घंटे के लिए बिजी हो गए। तो जब मेरा सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया, उसमें शो हो गया कि आपके ओवरी में लेजन्स है, राइट ओवरी में। तो जब डॉक्टर के पास ऊपर जब नीचे से हम ऊपर की तरफ डॉक्टर के कैबिन तक गए हैं, तो डॉक्टर बड़े प्यार से बोलती है, नहीं हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन राइट ओवरी में लेजन्स हैं, तो आपको आपकी हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो आप कहें तो हम आपका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर है। हम इतने ब्लैंक कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ। एक इमेज सामने आई, आप डॉक्टर से ही मिलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने एक ले लिया कि चलिए ठीक है। जब हम वहां से घर पहुंचे हैं, मतलब चेंबूर से कांदीवली जाना था, और मैं मेरे भैया के साथ आई थी, तो पूरी गाड़ी ना मैं ऐसे मतलब बाहर से सीन देखते देखते जा रही हूँ, मैंने कुछ फील नहीं किया उस टाइम पे कि क्या है, ब्लैंक थी बिल्कुल। घर आई हूँ और मैं एकदम ब्लास्ट, मतलब मेरा रोना शुरू हो गया कि क्या हुआ, एकदम क्या हुआ। लकीली वही आप कहोगे कि ब्लेसिंग है आपकी, कि इतने लोग हैं आपके पास। तो दोनों भाई यही कहने लगे कि नहीं नेहा कुछ नहीं है, ये भी एक फाइट है, हो जाएगी पूरी। तो एक उसके लिए एक बीच में एक फनी मोमेंट बताऊंगी। मैं ना ऐसे करके रो रही थी, तो मेरी मम्मा बार बार मेरा हाथ हिला रही थी, तो मैं बहुत ऐसे कड़क करके बैठी थी और मैं हिल नहीं रही थी। तो मेरा छोटा उस टाइम पे 4 साल का था, आज 5 साल का है। तो वो एकदम पकड़ता है नानी को, नानी नानी मम्मा मर गई क्या। तो वो एक इतना फनी मोमेंट था कि मतलब रोते रोते सब हंसने लग गए। और सेकेंड थिंग ये था कि सॉरी टू से, लेकिन मेरे ऐसे थॉट प्रोसेस था कि साले अभी तो तेरी माँ जिंदा बैठी है, तू अभी से मार दे उसको। तो ये चीज थी। फिर अनुराधा आंटी का फिर फोन आया, आंटी और मैं जैसे आपको बता रही कि वो बॉन्ड बनता चला गया। तो आंटी का फोन आता है मेरे पास कि बेटू क्या हुआ।
तो मैं सिर्फ रो रही थी। आंटी की एक बात मैं हमेशा कहूंगी, आंटी इतनी पेशेंटली मतलब आपको सुनेगी। जब भी आप प्रॉब्लम्स में रहेंगे, कभी आंटी का कुछ भी इम्पोर्टेंट काम रहेगा, आंटी कभी आपको नहीं छोड़ेगी। तो मैं रोए जा रही हूँ और आंटी सामने बैठी है मेरे। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं फोन कट कर दूं, तो नहीं बेटा तू रो ले, जितना तुझे रोना है तू रो ले। तो मैं भी रोए जा रही हूँ और आंटी बोल रही है। थोड़ी देर तक मैंने आंटी को देखा, फिर आंटी ने बोला हो गया, मैंने कहा हो गया। तो जब वो ऐसे हुआ तो आंटी बोलती चलो अब वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाके मुंह धो के आओ, अपने भगवान के हाथ जोड़ो और भगवान से ये कहो कि भगवान अब अब मैं वापस से तेरे सुपुर्द हूँ, तुझे जैसी मतलब जो राह तू दिखाएगा मैं उस राह पे चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने वैसे ही किया। और जैसे आंटी है, जेनॉन को से मुझे सुनीता, निशा, ये लोग सब इतने लोग मिले। मेहुल भैया का एक सीन आपको मैं बताऊंगी। जेनॉन को मैं जुड़ी जुड़ी थी और उस टाइम ना कोई एक बहुत नेगेटिविटी फैला रहा था उस टाइम पे कोई बंदा। तो मैं उस टाइम मेहुल भैया को जानती नहीं थी। मैं सब सर बोलते थे, मैं भी सर बोलती थी। फिर मैंने एक दिन भैया को बोला कि भैया कैन आई कॉल यू भैया? तो बोले हाँ हाँ मैं तुमसे बात जरूर करूंगा। मैंने कहा भैया आज मुझे ना बहुत नेगेटिविटी हो रही है ये। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तो कभी उसको समझाता हूँ प्यार से। बोले डिम्पल उसको रिमूव कर देगी। और वही हुआ। वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे भैया ने मतलब मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ी और मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सराउंडिंग्स इतनी अच्छी थी कि मुझे प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन प्रॉब्लम्स में मुझे सोल्यूशन भी मिलता चला गया। तो ऐसे करते करते मेरा सर्जरी हुआ। जो भी ओवेरियन कैंसर में जो प्रोटोकॉल होता है वो मेरा पूरा प्रोटोकॉल से वही सर्जरी हुआ। और उस टाइम भी सेम यही था कि आंटी हैं और मतलब सुनीता एक है, काफी अच्छी दोस्त रही है मेरी। तो इन लोगों को पता था कि इनको समझ में आ रहा था कि हाँ नेहा का मैलिग्नेंसी है। बट मुझे ये लोग शो नहीं कर रहे थे इस टाइम भी कि, और मैं इतना सोच भी नहीं रही थी। मैं एक्चुअली इस बारे में मुझे पढ़ाई करना ही नहीं था, मैं जो हो रहा है ठीक है गो विद द फ्लो। तो आंटी और ये लोग जब मेरा सर्जरी वाले दिन डॉक्टर ने भी ऐसा कहा था ये ऑन टेबल पता चलेगा कि आपकी मैलिग्नेंसी है कि नहीं। तो मेरे भाई लोग भी यही सब थे कि हाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सर्जरी अच्छे से हो गई, कुछ नहीं है। वो मुझे समझ में आ गया था धीरे धीरे कि हाँ ये मैलिग्नेंसी है, आपका कैंसर रिलैप्स हो गया है। तो ठीक है चलिए, वो भी एक पार्ट था, वो भी निकला। और ऐसे करते करते मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी मेरा कोकिलाबेन हॉस्पिटल में रहा इस बार हमने डॉक्टर अडवाणी को नहीं दिखाया था। इस बार हमने डॉक्टर योगेश कुलकर्णी एंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर को हमने दिखाया था। तो ऐसे करते करते सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद अगेन मेरा पहले के सारे कीमो मेरे हैंड से गए हुए थे क्योंकि प्रेगनेंसी था, तो मेरा कोई पोर्ट वगैरह नहीं डला था उस टाइम पे। और 17 कीमो भी जब मुझे लगे थे वो हाथ से ही लगे थे, तो उस टाइम में मेरे हाथ में वेन्स वगैरह का इशू हुआ करता था। बट इस बार डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके पोर्ट लगवाना नेसेसरी थी। तो ऐसे ही जब सर्जरी हुआ, सर्जरी के 1 महीने बाद मेरी पोर्ट की सर्जरी हुई और उसके नेक्स्ट डे मुझे फर्स्ट कीमो लग गया कैटजिला करके। एक अभी टाइम भी मैं वो रहा था मेरा ER PR 10% 20% पॉजिटिव और HER2 पॉजिटिव। तो जब HER2 पॉजिटिव था तो उसका कैटजिला करके एक ड्रग है, तो वो मुझे स्टार्ट हुआ। और उस टाइम पे भी ये था कि डॉक्टर अभी कुछ क्लियर नहीं बताए थे। उस टाइम उन्होंने कहा कि 6 कीमो लगेंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते तो ऐसे शुरू में मेरे 7 कीमो बॉम्बे में लगे हैं और 7 महीने में बॉम्बे रह के आई थी। फिर मैं इंदौर में आ गई हूँ और अभी इंदौर में मेरे टोटल अभी तक 16 कीमो हो चुके हैं और आगे 5 तारीख को मेरा 17 कीमो है। तो मैं यहाँ से बस काउंटिंग कर रही हूँ कि मेरे कितने कीमो हो रहे हैं। और ये तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहा था। बट सबसे बड़ी चीज मैं पूरी जर्नी में यही चीज बोलूंगी कि ब्लेसिंग्स है और ग्रैटिट्यूड जो मैंने फील किया है। जो मुझे इतनी सराउंडिंग्स, इतने अच्छे लोगों की सराउंडिंग्स मिली है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन हर चीज के साथ ऐसा रहता है कि आपको कोई मॉरल सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको मेंटली फिजिकली सपोर्ट दे रहा है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा है, कोई इमोशनली सपोर्ट। तो हर सपोर्ट मेरे साथ, इतने लोग से जुड़ी हुई हूँ मैं, मुझे इतने लोगों की ब्लेसिंग्स है कि आज भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं दुआओं से यहाँ बैठी हूँ और इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि हर जना मेरे पास ऐसा नहीं होता था कि कोई जैसे एक जैसे आंटी है या मेरे दोस्त और भी हैं,
तो जो चीज जिनसे मुझे लगता है कि हाँ वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं हमेशा शेयर करती थी। और शेयरिंग बहुत जरूरी है इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना तो आधा आपका स्ट्रेस, आधा नहीं, मेरा तो पूरा ही खत्म हो जाता था, क्योंकि स्ट्रेस कभी बढ़ने ही नहीं दिया ऊपर तक। होता है स्ट्रेस, ऐसा नहीं है, रोना धोना भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, बहुत रोती हूँ, पर रोने के बाद नेक्स्ट मोमेंट में मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, ये इस मोमेंट को फिर से एंजॉय करना है। तो ये बस मेरी एक स्मॉल जर्नी ऑफ कैंसर। Thank you so much, Neha, for sharing it so beautifully. जितनी बार मैं आपकी जर्नी के बारे में सुनती हूँ उतनी बार आई गेट गूज बम्स की इट वॉज नॉट एज इजी एज यू एक्सप्रेस्ड इट, बिकॉज मैंने कई बार विटनेस किया है आपकी जर्नी को कि यू गॉट प्रेग्नेंट एंड दैट टाइम यू हैड कैंसर, उसके बाद दोबारा से कैंसर आना, और उसके बाद में आई हैव ऑल्सो सीन यू जब आप किसी और के हीलिंग सर्कल में थे एंड यू जस्ट टुक योर कीमोथेरेपी, कई बार आपने हीलिंग सर्कल हॉस्पिटल से भी लिया है। एंड एवरी टाइम आई लुक्ड एट यू, आई यूज्ड टू गेट अमेज्ड कि कैसे कर लेती हैं, इट्स नॉट इजी टू डू, वी ऑल नो इट, वी हैव ऑल बीन गॉन थ्रू दैट फेज, एंड स्टिल आई थिंक इट्स योर स्ट्रॉन्ग विल पावर। एंड यू, आपने सही बोला कि आपने कभी उस बीमारी को अपने दिमाग तक आने ही नहीं दिया, you have actually come over it and you have actually controlled it in your mind कि ठीक है जितना पेन देना है दे दो, but one day I will get over it, one day I will show that I defeated cancer, and that's what I see in you and every time I hear your journey, and you have no idea how many people you have already inspired. And when it came second time, जब आपने बताया पिछले साल कि आपको दोबारा आया है, I was scared, honestly मुझे डर लगा था, but after talking to you once or twice and seeing you in the circle, I think I was wrong. So I was actually wrong, because you have proven it again that no, cancer cannot come to me, and okay, we'll go through it again, but of course it's the journey that matters, and you have lived it beautifully, and it's been inspiration for all of us. So thank you so much, first of all, for showing that courage, that entire your smiling face, no matter when you are taking chemotherapy, just 2 days after chemo, 15 days after chemo, you will always smile, and it's really an example for many others that yes, in difficult circumstances also we can smile, we can keep that strong willpower. And you, as you rightly said, that yes, you have great community support, you have great family support, many other community people who have been, who are always there when you want to just share your heart out, and that's what ultimately matters, that we are always stand for each other. So, and you have also helped many patients, so it's giving and receiving. So thank you so much, Neha. So Neha, if you have to share top 3 advices to cancer patients, because I think you have been on both fronts as a patient and as a caregiver also. So as to cancer patients, what will be your advice, and for caregivers, what will be your advice? कैंसर पेशेंट्स के लिए तो मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगी कि सबसे पहले जो फोरमोस्ट चीज होती है वो है आपके डॉक्टर पे आप ट्रस्ट करिए। अगर आप सेकेंड ओपिनियन पे भी जाते हैं तो उसके बाद भी आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। लोग ना, क्या होता है अभी, जैसे ठीक है अभी आप कह रहे हैं, जैसे मैं भी बहुत लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि लोग क्या होते हैं डॉक्टर पे ट्रस्ट ना करके ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं और उस चीज में अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और उनकी डिसीज भी बढ़ जाती है इस चक्कर में। तो सबसे पहले डॉक्टर आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो फिर आपकी डेस्टिनी है कि आपको ट्रीटमेंट कैसा लगता है, आगे आपका क्या है फ्यूचर वो नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट आपको सबसे पहली जो चीज है वो आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आगे आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर रहेगा, आप खुद सही रहेंगे। और दूसरी चीज है कि सबसे बेटर जो मैंने अभी लास्ट टाइम एक अटेंड किया था, उसमें एक अंकल ने ऐसे कहा था कि यस, विल पावर होना चाहिए। तो मैं हमेशा एक चीज कहूंगी कि ये इतने हीलिंग सर्कल्स होते हैं। मैं शायद उस टाइम पे एकदम इनिशियली नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब मैं संगीनी से जुड़ी तब संगीनी में क्या, हमें ऐसा नहीं है ना कि ये इतनी स्टोरी शेयर करके सब लोग विल पावर का एक टैग बोर्ड दे देते हैं कि आप विल पावर बस रखिए, कैसे विल पावर होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों की स्टोरी सुनते हैं, दूसरों की स्टोरी से क्या होता है, आज जैसे मेरी स्टोरी, अगर मेरी स्टोरी से कोई भी इंस्पायर्ड होता है तो वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मैं किसी को किसी भी वे में हेल्प कर सकी।
तो सबसे पहली जरूरी है आप ट्रीटमेंट सही लीजिए, बाद में अपने आप को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि अपने आप पे मतलब स्ट्रांग रहना आपको बहुत जरूरी है। और उसके बाद तो आपके भगवान पे आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि वही है सब कुछ करता धरता। क्योंकि अगर भगवान साथ में है तो मुझे लगता है कि कोई भी जंग है, अगर अपने आप पे ट्रस्ट रखेंगे तो सब कुछ बहुत ही इजी गोइंग होगा। स्ट्रेस आता है और प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी बहुत इजीली हो जाता है और ऐसे कि हाँ आपने कह दिया आपको 3 कीमो लगे, 6 कीमो लगे और निकल गया। जिसे बहुत कीमो लगे, मेरा तो भी बहुत ऐसा लगता है कि लाइट कीमो है कैटजिला, लेकिन जिसको कीमोथेरेपी बहुत स्ट्रांग वाली जो चढ़ती है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा तो बहुत लाइट है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और जो भी जैसा भी आपका डॉक्टर आपको कह रहे हैं वैसा वैसा आप करते चलिए। Right, thank you, Neha. And आपने then we talk about lifestyle approaches. So can you share कि आपने कौन-कौन सी lifestyle changes adopt किए थे? It can be walking, playing with kids, और कुछ भी हो सकता है, dietary changes, anything that helped you. देखिए डिम्पल दी, सबसे पहले एक चीज बताऊंगी। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो नहीं सॉरी, जब मैं बॉम्बे से आई थी, मेरा 28 दिसंबर को मेरा सर्जरी हुआ था, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी, और 15 जनवरी को मैं इंदौर में थी, क्योंकि मेरे बड़ी बेटे को भी मैं यहाँ छोड़ के गई थी। वो भी 6 साल का था और ये 6 महीने का था, मेरे हाथ में 4 महीने का था। तो चीजें जब मेरी रेडिएशन हुआ तो डॉक्टर का ऐसा था कि नेहा है ना, 5 किलो से वजन ज्यादा नहीं उठाना है। मैं ठीक है नहीं उठाना, तो मेरे हस्बैंड को भी कह दिया कि 5 किलो से ज्यादा इसको वजन नहीं उठाना है, इस हाथ को बिल्कुल इसको वजन नहीं रखना है। कौन बताए कि बच्चे का काम, ठीक है आप कितने ही सर्वेंट्स रख लीजिए, लेकिन बच्चे को जो जरूरत है वो तो एक माँ ही कर सकती है। तो वो मुझे करना ही था, कुछ भी एनी हो। और 6 साल का जो मेरा बेटा था वो भी मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं था, तो मैं उससे भी उम्मीद नहीं कर सकती कि नहीं यार वो बहुत बड़ा है। उसको मैंने एक्चुअली बड़ा, अभी भी मैं उसको बड़ा समझती हूँ। वो यहाँ बैठा है आज मेरा सेशन सुनने के लिए। लेकिन मैं बच्चों के साथ हमेशा खेलती थी और मैं काफी एक्टिव रहती थी। सबसे पहली चीज है, मतलब मुझे है ना, जो आस के सराउंडिंग्स होते हैं, मेहुल भैया की एक बात है, ज्ञान बहुत देते हैं लोग वो लेकिन मुझे बहुत ज्ञान मिला, नेहा तो ज्यादा काम मत किया कर, रिलैक्स होने के चांसेस है। नेहा ऐसा मत किया कर, नेहा वैसा। मैं ठीक है, शुरू में आपको क्या होता है, आप खुद नहीं समझ पाते कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या कि मैं एक्टिव बहुत रही, मतलब किसी भी काम के लिए मैं घबराती नहीं थी कि कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं है कि मैं करती थी। मेड्स आ रही हैं फिर भी मुझे पता है कि खाना मुझे बनाना है। मैं रेडिएशन के दौरान मेरी मेड से छुट्टी ली थी 15 डेज की, खाना बनाने वाली। मैंने पूरा खाना बनाया, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आप ना खाना नहीं बना सकते क्योंकि आप फ्लेम के सामने नहीं जाइएगा। अभी ऑप्शन क्या है, आपको तो आपके दोनों बच्चों को देखना है ना। ठीक है, हस्बैंड बाहर से खाना खा सकते हैं, इनलॉज बाहर से खाना खा सकते हैं, बच्चों को तो घर का ही देना है। तो चीजें ऐसी थी कि अपने लिए भी खड़े होना है, अपने बच्चों के लिए भी खड़े होना है। ये सबसे पहले एक मेरा मेजर थिंकिंग था और आज भी है। और सेकंड थिंग ये कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस में थे, तो लाइफस्टाइल में शुरू में बहुत नहीं कर पाती थी, सीरियसली मैंने ज्यादा नहीं किया। वॉकिंग भी मुझे बहुत लोग टोकते थे कि तू वॉकिंग शुरू कर, क्योंकि छोटा बेबी था। जिस टाइम मेरा सोने का वक्त होता था कि मुझे 6 बजे बहुत नींद आती थी, वो 6 बजे से उठ के बैठ जाता था। तो चीजें इतनी इजी नहीं थी। और बट ये कि ठीक है, उसके बाद अभी मैंने काफी चेंजेस लाए हैं। उस टाइम मैंने सिर्फ शुगर कट करी थी, सीरियसली शुगर मैंने कट कर दी थी। मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे, दूध पीना छोड़ दिया था। मुझे बहुत लोग, आंटी बैठी है सामने, मुझे डांटेंगी अभी भी कि आंटी एक निशा है, चिल्लाते थे कि हमेशा कि तू दूध क्यों नहीं पीती है। हाँ मैं पीऊंगी पीऊंगी, ऐसे करते करते ये सब मेरा सोच हो गया था। फिर बाद में जब मैं, आज मेरा जो ट्रीटमेंट के बाद हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा, अपने आप शुगर से दूर रखा, मैंने मैदे से दूर रखा। क्या हुआ, मुझे रिलैक्स क्यों हो गया? मुझे इसका कोई मुझे सोल्यूशन बताए सबसे पहले तो, कि मैं इतनी जल्दी मुझे रिलैक्स कैसे हो गया? क्योंकि मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी, फिर मुझे रिलैक्स क्यों हुआ? और वो भी ऐसे कि जब आपको पता ही नहीं है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, और आपको एकदम ऑल ऑफ सडन कोई कह दे कि यस आपको तो ओवरीज में ओवरी में आपके लेजेंड्स दिख रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मेरी कभी ऐसा बहुत नहीं रही, मैं सब खाती हूँ और आज भी मैं सब खा रही हूँ। मतलब बस यही है कि लिमिट में खाती हूँ, कभी कभी ओवर हो जाता है तो आंटी को फोन करके बोलते हैं आंटी आज मैंने बहुत सारी चीजें खा ली, मुझे टेंशन हो रहा है। बट ऐसे नहीं है, मैं सब खाती हूँ। और अब मेरी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है
कि अभी मतलब मैं जैसे बच्चों के साथ बाहर भी जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो श्रीमय सेलिब्रेशन में अभी लास्ट संडे गए थे, तो यार ये हो गया कि चलो यार पाव भाजी खाने की इच्छा है, वो भी खा ली। इंजॉय करना है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि लिव योर लाइफ फुलेस्ट, कि देयर इज नो टुमारो। ये मेरा एक फंडा है और ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। Wow, that's I think that's the key to your happiness and to your recovery as well. Wonderful. Would Thank like you. to hear from others. So we'll begin with Anuradha auntie. हेलो। Hi auntie. हाय नेहा, हाय डिम्पल, हाय एवरीवन। मेरी सोल्जर के लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। हर रोज नई जंग के साथ तैयार है लड़की, और उतनी ही मुस्कुराती, उतनी ही फ्लाइंग कलर्स से, जिसको कहते हैं ना पासिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये इसकी स्माइल है, इसकी पॉजिटिविटी है, और खुद अपने साथ सबका इतना ख्याल रखना, सबकी इतनी केयर करना, इवन इन संगिनी भी सबके लिए। तो इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए कोई शब्द नहीं है। बस आई लव यू फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट, लव यू। Thank you, Auntie. Thank you. Neha, I would like to hear from Advait if he's fine with it. Advait, मैं आपको unmute करने का Advait? Hello everyone. Hi. Hello Ma. Thank you everyone for giving me this opportunity to join in this meeting. माँ, मेरे को आपको सिर्फ एक चीज बोलना है कि फाइटर हो और फाइटर रहे। Thank you so much, Babu. Thank you, Adu. Thank you. Thank you, beta. Thank you, Advait. Hi, Anita ji. Hello. Hi. Would you like to say Namaskar. something? Hi, Didi. Hello. Hello. Yeah. Anita ji, आप अपना experience और या नेहा के लिए would you like to share something? नेहा, मैं भी ओवेरियन कैंसर है, मुझे भी यही हुआ है। सुन के वाकई तुमसे सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है, क्योंकि मैं भी 3 बार फेस कर चुकी हूँ। 2013 के बाद 2016, 2018 में फिर हुआ। लेकिन तुमको देखकर और हंसते हुए देखकर जो हिम्मत, जो ताकत मुझे, जो हौसला मुझे मिल रहा है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इसी हिम्मत के साथ फेस करती रहो तुम। और तुमने एक चीज जो मुझे बताई कि तुम्हारा ये ER-PR जो पॉजिटिव था, तो ये तुम्हारा 2016 में भी था क्या, कि बाद में हुआ? नहीं, ये बाद में भी मेरा पॉजिटिव था, वीकली पॉजिटिव ही था। अच्छा, पर 2016 में मालूम पड़ गया था तुम्हें? हाँ, जो बायोप्सी हुआ था, FNAC का जो रिपोर्ट आया था, उसमें आ गया था मेरा कि आप ट्रिपल कैंसर हो। बस ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, और ऐसे ही हौसला दूसरों को देती रहो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you so much. Would like to hear from Mehul. Hi, good morning. Oh, sorry, good afternoon. Hello, yeah. Neha is amazing. नेहा से बात किया, या even if I chat with her ना, तो मेरे मुंह पे स्माइल आ जाता है। मतलब जैसे कोई लोग होते हैं ना, पॉजिटिविटी इतनी होती है कि आप उनके बारे में सुनो या चैट करो, तो आई फील so nice, and I'm lucky to chat with her almost every day. We are more like, you know, friends and like a brother sister kind of. हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और मजा आता है। But amazing person, बहुत कुछ मैं सीखता हूँ नेहा से, and positivity मतलब भर भर के है, बहुत ही है। So I always and Advait, I'm very inspired by your music talent and all. Your mom keeps sending your videos, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। मैं भी बचपन में हारमोनियम बजाता था, फिर छोड़ दिया, नहीं could not do it. But you don't do that, you continue, and it's really nice to, you know, cross paths with people like you, Neha. Thank you for all what you do. Blessings, बहुत सारे blessings. Thank you so much, भैया. Thank you so much. Would like to hear from Nisha. Yes. Hello Nehu. Hi Dimple. Hello Auntie. सबको मेरा हेलो। मैं नेहा के बारे में यही बोलूंगी कि जब मैं इंदौर आई थी, और मैं इंदौर आई और उसके कुछ ही दिन बाद मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो गया था, और मैं बहुत मतलब मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी।
और सडन चैत्राम से कहाँ से पता नहीं नेहा मुझे मिल गई। हम दोनों को कनेक्शन था तो हम लोग को मिलना ही था, और बस आधे से ज्यादा मेरी प्रॉब्लम नेहू ने सॉल्व कर दी। कोई मतलब एक अंदर से इसकी स्माइल देख के, इसकी बातें सुन के इतना स्ट्रॉन्ग फील करती थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब थैंक गॉड को थैंक बोलूंगी कि हाँ मुझे नेहा जैसी दोस्त मिली। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। लव यू निशा। थैंक यू सो मच निशा। हाय कोमल। Hi Neha. Hi everybody. Hi Komal. Yeah, Komal, would you like to share something? Yeah. मेरे को भी ऐसे ही ब्लेसिंग जैसे मिली थी नेहा। Even I was diagnosed with breast cancer and I was getting my radiation done at Choitram, और वहाँ पे नेहा का भी चल रहा था, रेडिएशन ही चल रहा था उस टाइम पे, और उसने आगे रह के मुझे अप्रोच किया था और वी बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और उस दिन के बाद आज तक हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, और इतना वो मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा गाइड करती है। जब मेरे को रीअकरेंस हुआ था 19 में, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक एक मिनट में हम लोग कैसे बात करते रहते थे, और हमेशा ही she has always been a source of power and positivity. Right. She is God's angel. Thank you. Very true. Thank you, Komal. Yeah. No, Neha, it's your journey. It's your, I mean, inspiration is because of the way you have led your life. And saying is easy, doing is difficult. आपने वो करके दिखाया है कि आप सबके लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। तो नेहा, हम लोग की लाइफ में जब भी क्राइसिस आती है तो एवरी टाइम अ क्राइसिस टीचेस अस सम लेसन। सो व्हाट इज दैट लेसन फॉर यू? इससे तो मैंने एक ही चीज सीखी है कि नेवर लूज होप एंड बी अ फाइटर, और उसके बाद हमेशा जिंदगी विंस रहेगी। ये तो मैं हमेशा इस चीज को सोच के चलती हूँ। और अभी मैं जो ये सेकंड रिलैप्स के बाद मेरी और सोच ऐसी हुई कि जिंदगी के बारे में मत समझिए ज्यादा, जिंदगी को सिर्फ जी मतलब आप जिए, कि जिंदगी को सिर्फ एंजॉय कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पे आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। अभी का मोमेंट है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपना फुलेस्ट आप दे सकते हैं। मैं भी वही करती हूँ। अभी कुछ मेरे साथ होता रहता है, कभी कभी जैसे बच्चे छोटे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है, बीच में कोविड आ गया था घर में इन लॉज को। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप सिर्फ एक ई करके और लेकिन बस इसमें ताकत बहुत होती है कि आप हर चीज को एक इजी वे में लेकर अगर आप चलेंगे तो लाइफ बहुत ही आपकी हैप्पी हो जाएगी। और हमेशा ऐसा लगता है कि जितना आपने सीखा है उतना ही आप लौट के आपके पास एज अ ब्लेसिंग ही आएगी। तो मैं थोड़ा ब्लेसिंग से ज्यादा, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है क्या? सॉरी। हाँ, बीच में काफी लूज हो रहा है कनेक्शन आपका। अभी ठीक है। बस यही कहूंगी कि आप जिंदगी को हर पल एंजॉय कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं है। तो बेटर है कि जितना आप लोगों ने इतना, जैसे भगवान ने आपको एक कहते हैं ना कि थैंक यू फॉर अबांडेंस, कि लाइफ में इतनी चीजें मिली हैं आपको, इतना पॉजिटिविटी, आपकी सराउंडिंग्स, इतने अच्छे अच्छे पीपल आपके आसपास हैं जो आपको कभी ऐसे नेगेटिव आप हो रहे हो लेकिन आपका होप नीचे नहीं गिरने देते। तो यही चीज है कि आप भी सीखिए और आप भी वो दूसरों को फैलाइए। एटलीस्ट घर से शुरुआत कीजिए, कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है, दे चपाट लगा दी दो एक, फिर उसके बाद लगता है नहीं यार गलती करी, नहीं मारना था। और उसको उस वे में जैसे आज मैं आंटी से के लिए इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि आंटी एक है, जैसे आंटी से कुछ चीज पूछी तो आंटी हमेशा, जैसे एक मेरी मम्मी है, मेरी ताई जी, ये लोग भी मुझे बहुत प्यार करते। तो इनको जैसे मैं कभी पूछूंगी ना तो ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चल के शायद मुझे, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं तो ये मुझे मेरे
उस चीज का नॉलेज देंगे कि यार हाँ तू ही सही है। बट आंटी से जब बात करूंगी ना, तो आंटी से एक आंटी दो चीज से लेके चलती है, आपकी गलतियों को बताएंगी नहीं, बट उस गलतियों को आपको कवर अप करके कैसे उसको अच्छी चीज करनी है, उस वे में आपको जाना है। कोई जैसे आपकी किसी के साथ गलत चीज हो रही है, आपको बाई चांस किसी के साथ आपकी लड़ाई है, आपको मन ही मन उससे कुछ तकलीफ है, तो आंटी उस चीज को भी समझाएगी कि वो भी सही है, वो गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ये चीज अगर आप सीख गए ना, तो लाइफ वाकई बहुत ही अमेजिंग हो जाती है। और आपको हमेशा लगता है कि यस थैंक यू कैंसर कि जो तूने मुझे इस टाइम पे एटलीस्ट ये नॉलेज सिखाया, पहले शायद नहीं था, आज बहुत है। कोशिश ये है कि और सीखना है। Right. Very true. And it seems like your life is full of gratitude and gratefulness. And that reminds me, takes me to a question कि gratitude जो होता है वो हमारी सबसे बड़ी strength होती है, जो difficult situations को भी एक positive situation में convert कर देते हैं. And that's what I learned from my journey also. कि जब इतना difficult time था, तब भी हम लोग निकाल पा रहे थे टाइम बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड दैट वी हैड फॉर ऑल द सपोर्ट दैट वी हैव बीन रिसीविंग फ्रॉम पीपल अराउंड अस। और उसकी वजह से पेन एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, एंड दिस ग्रेटफुलनेस ओवरवेल्म्स एवरीथिंग एल्स दैट वी आर गोइंग थ्रू। एंड आई कैन सी इट इन योर आईज आल्सो कि आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है। सो व्हाट इज द व्हाट और अदर आई शुड से फॉर यू, व्हाट आर द थिंग्स यू आर सो ग्रेटफुल ऑफ? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मतलब मैं इस चीज को भी है ना एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे कैंसर आया, तो कैंसर एक बहुत सारी चीजें लेके आता है, जिसमें आप अकेले सफर नहीं कर रहे हो, पूरी फैमिली सफर कर रही है। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है। जैसे इस टाइम के डॉक्टर में ट्रीटमेंट मेरा 3,20,000 का 1 कीमो था, और 6 कीमो के बाद वो फ्री पॉलिसी हो जाती है, लेकिन 19 लाख आपके 6 कीमो तक लगने थे। तो कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल किस चीज के लिए हो कि आपका हस्बैंड, सबसे पहली बात आपको इंश्योरेंस करवा रखा है आपके हस्बैंड ने। तो अगर वो इंश्योरेंस नहीं होता, या हस्बैंड ठीक है सब अपनी अपनी फैमिली के लिए अपने मेंबर्स को खोना नहीं चाहते, चाहे भाई हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा। लेकिन आपके हस्बैंड अगर आपका फाइनेंशियली इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका पिलर लेके खड़े हैं, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कि आप इसके लिए भी ग्रेटफुल हैं। आप बॉम्बे जैसी जगह में मेरे पेरेंट्स, अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा इंदौर में ट्रीटमेंट होता। तो उनके लिए भी कि दोनों मेरे ब्रदर्स भाभी मेरे पेरेंट्स, मतलब उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल कि वो हैं, तो और सपोर्ट मिलता चला गया। अगर मेरे इन लॉज नहीं होते तो मैं मेरे बड़े बेटे को कहाँ छोड़ के जाती। तो मैं ऐसी चीजें अगर सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये चीज मैं हमेशा कहूंगी कि मैं अभी भी जो मेरी सराउंडिंग्स है उनसे, मैं जैसे आज कोमल कह रही है कि वो मुझे सिखाती, मैं उसे सिखाती, मैं उसे कुछ नहीं सिखाती, वो मैं सिर्फ उससे सीखती हूँ, और आज भी मैं सीख रही हूँ। वो हमेशा मुझे बोलती है नेहा एक टाइम है, एक फेज है, सब निकल जाएगा। वो खुद इतनी डिवाइन सोल है कि उससे जब भी बात करूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ कितनी हैप्पी है। तो चीजें हमेशा ग्रेटफुल मैं बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड बैठी है जुमाना, श्वेता, ये लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं। आज भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सिर्फ मैं एक मैसेज डाल देती हूँ, और ऐसा नहीं है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगी, सिर्फ शेयर करती हूँ। मेरी जो कनेक्शन है वो बहुत क्लोज है, तो सिर्फ मुझे शेयर करना है। और वो हमेशा बोलते हैं नहीं तू तो कुछ नहीं है, तू तो फाइटर है, तू तो फाइटर है, तू तो निकल जाएगी। तो ये जो एक सपोर्ट है, आपको मेंटली रिलैक्स करके बैठा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो कल का मुझे नहीं पता कि अभी मेरा कीमो कब तक चल रहा है। सब मुझे पूछते हैं कब तक कीमो चलेंगे, कितने कीमो हो गए। कोई बात नहीं है, कीमो से बैठी तो हूँ ना अपने बच्चों के साथ। तो वो चीज के लिए कि हाँ कीमो को भी थैंक यू कि यस सब चीज के लिए थैंक यू कि मैं आज का मोमेंट एंजॉय कर पा रही हूँ। वेरी ट्रू, थैंक यू नेहा। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर, अगर किसी को कुछ भी शेयर करना है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो टर्न ऑन करिए, एंड उसके बाद में आई कैन अनम्यूट यू सो दैट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो यस सुशील जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, नेहा जी से केवल इतना पूछना है मुझे। उन्होंने अपनी जर्नी में भी जिक्र
Sorry, आपका voice, सुशील जी, we couldn't hear you. Can you please? I'm requesting you to unmute. Yeah. Okay. Right. Is it okay? Yeah, it is okay now. Okay. हाँ, नेहा जी से इतना पूछना था कि उन्होंने अपनी अभी जर्नी में डॉक्टर सुदीप गुप्ता का नाम लिया था। हाँ जी, तो डॉक्टर सुदीप गुप्ता को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैं सेकंड ओपिनियन के लिए किसी एक IRS ऑफिसर हैं जो मेरे कनेक्ट में है, उनके थ्रू मैं अपनी रिपोर्ट्स उनको भेजता हूँ। तो मैं अगर कभी बनता है भविष्य में डॉक्टर सुदीप गुप्ता आजकल न्यू बॉम्बे में शायद उन्होंने अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया है आजकल। जी प्लीज। सुशील जी, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। हमें किसी ने बताया, डॉक्टर मतलब कोकिलाबेन हॉस्पिटल से हमें किसी ने बताया था कि आप उनको भी एक बार रेफर कर लीजिए। ट्रीटमेंट तो मुझे पता था, जैसे हमने उस टाइम जो भी हमें ट्रीटमेंट दिया था, बस हम उनसे एक बार मिलने गए थे कि जो हम लेंगे, जो भी हम मतलब आगे फ्यूचर में लेना था हमें, तो वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद मैं मतलब कोकिलाबेन के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे ही लिया, क्योंकि बाहर के डॉक्टर्स अलाउड नहीं करते। तो कीमोथेरेपी मैंने डॉक्टर इमरान से लिया था, बट हम सिर्फ एक बार उनसे एक सेकेंड ओपिनियन के लिए गए थे उनसे मिलने। मैं भी एक्चुअली किसी के थ्रू मेरा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आकाश तिवारी साहब का चल रहा है इंदौर से, सेल्फी हॉस्पिटल से, है ना। तो मैं भी हर जैसे ही जितने 2 बार पैट हो चुका है तो पैट रिपोर्ट्स भेजता हूँ उनसे, और डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन भी भेजता हूँ, जो भी एडवाइस लिखते हैं वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन भेज देता हूँ। एंड ही very politely he respond to my emails, however it is through some link. तो उनका ओपिनियन है। मैं सोच रहा था कि एक बार अगर पर्सनली उनसे मिला जाए, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। नहीं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं नहीं गई हूँ, मैंने अभी डॉक्टर सुदीप गुप्ता से लास्ट मंथ ही ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। ग्रेट, ओके ओके ओके। तो मैं डिम्पल दी को उनका सारा जो भी उनके मीडिएटर्स हैं, उनकी सारी मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके ओके ओके, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निकिता। क्योंकि मेरा क्या मार्च में थर्ड टाइम पैट है शेड्यूल, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर पैट के बाद मैं अभी तक 2 बार की रिपोर्ट भेजी है। एंड इज सो नाइस। अब आपकी जर्नी जितनी भी अभी आपकी जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वेरी एनकरेजिंग है एंड कीप इट अप। और आप लोगों की ये जो मुस्कुराता चेहरा है, वो तो मालूम नहीं इस पूरे दर्द को कहाँ छुपा देता है। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको देखता हूँ तो लगता ही नहीं उसको कि मैं रहता हूँ टेंशन में, वो टेंशन नहीं रहती है। क्या लेकिन एनीवे, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू डिंपल जी। थैंक यू। हाय निकिता। हाय, मैं सिर्फ नेहा दीदी को इतना ही कहना चाहूंगी, रिमेन एज यू आर। आपसे जितनी पॉजिटिविटी मिलती है हर चीज के लिए, उतनी कहीं और से आती ही नहीं है। हम बीमार होंगे तो आप पॉजिटिविटी देती हो, आप बीमार हो तो भी आप ही पॉजिटिविटी हमें देती हो कि नहीं प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, यू डोंट वरी। मतलब इतनी कहाँ से लाती हो आप पावर? आई डोंट नो। आई एम रियली लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। प्लीज रिमेन विथ मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता, ये मेरी छोटी भाभी है। वाओ, सो गुड। थैंक यू। हाय अतुल। हेलो, मैं एक्चुअली सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी थेरेपिस्ट हूँ। एक्चुअली नेहा को मैं जब सुन रहा था तो मुझे मेरे कॉलेज डेज याद आए। तब हम लोग एक लड़की को मिले थे, इज आई थिंक जस्ट इन 21 ईयर ओल्ड दैट टाइम, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। एंड देन हम लोगों ने उसके लिए रद्दी बेच के हमने मनी इकट्ठा किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हमने उसको सुना था तो उसके अंदर जो हैप्पीनेस था, उसके अंदर जो जीने की चाहत थी। सो वी पीपल आर जस्ट लाइक यार इसके लिए हम क्या करें कि इसके लिए हम पैसे इकट्ठा कर पाए। दैट वाज दैट टाइम वी आर द कॉलेज स्टूडेंट जस्ट। एंड देन हम लोग सारे ऐसे स्टूडेंट थे उस टाइम पे
कि सिर्फ पॉकेट मनी आता था तो ऊपर के कुछ पैसे बचते थे, तो पॉकेट मनी से भी कुछ नहीं दे पाते थे। सो वन डे आई थिंक 14 फेब को हमने उसके लिए कैंप चलाया था इन द मराठी स्लोगन वी क्रिएटेड प्रत्येकातील कोमल, so means that loving from our side, and then that day we are collected the raddi of just like I think 70,000 rupees हमने उससे कलेक्ट किया था जस्ट इन द वन डेज। तब मुझे ये चीज याद आया नेहा को जब मैं सुन रहा था कि जो आपके अंदर हैप्पीनेस है ना, वो हैप्पीनेस काफी जरूरी है। एज इन द एनर्जी थेरेपिस्ट हम लोग कैंसर पेशेंट्स को और नॉर्मल पीपल्स को भी यही सजेस्ट करते हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो, सो दैट हीलिंग हैपन ओनली ऑन द बेस ऑफ योर हैप्पीनेस। अदरवाइज जब हम लोग उनको साइकोथेरेपीज देते हैं एंड देन काउंसलिंग वगैरह करते हैं, सो मेन मोटो इज टू जस्ट पुल आउट देम फ्रॉम दैट सैडनेस, है ना। अगर आप लोग सफर कर रहे हो, जो हैप्पीनेस मुझे नेहा में दिखा कोमल के बाद, तो वो आपका राज है कि आप लोग जल्दी से उस प्रॉब्लम से रिवाइव हो सकते हो। Wonderful. Thank you so much. Thank you, Atul. Thank you, Atul. I would like to hear from Kiran ji. Hi. Hello everyone. Hi Kiran ji. Hi. Hi Neha. Nehu, not Neha. I call her Nehu. मैं उसको प्यार से नेहू बोलती हूँ। पॉजिटिविटी की जो बात है वो एकदम 100% सही है कि नेहा में कूट कूट के भरी है। अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, हम लोग पेशेंट्स की काउंसलिंग कैसे करना है उसके रिगार्डिंग अनु दीदी ने एक मीटिंग ली थी तारण सर के हॉस्पिटल में, तो हम लोग सब मीटिंग के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे जैसे नेहा की बात हुई कि अभी तो हालचाल पूछते हैं सब लोग, जैसे जनरली मिलते हैं, तो उस समय कीमो भी चल रही थी इसकी एंड शी अटेंडेड मीटिंग ऑल्सो। तो अरे सब भूल जाओ सब कुछ, सब अच्छा है, कुछ नहीं, मतलब शी अवॉइडेड दैट कि कुछ नहीं है मुझे, मैं अच्छी हूँ एकदम। तो उस दिन मैंने बहुत कुछ, मतलब कई बार सी लर्निंग इज ऑलवेज देयर, मतलब आप कभी भी वो तो खत्म होता ही नहीं है। तो उस दिन भी मैंने नेहा से जो सीखा वो सीख में अभी तक मेरे पास है, क्योंकि क्या होता है लाइफ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेनिंग ही रहते हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो कंप्लेन ही करते रहते हैं। चाहे कभी भी, मतलब मेरी भी आदत थी कि जैसे थोड़ा 2-4 दिन हुए, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा, मतलब ये धीरे धीरे अब कम हुई है, पर उस दिन के बाद से बंद हो गई। मतलब वो एक कंप्लेनिंग वाला जो नेचर होता है ना, कि हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लेन करते रहना, ये वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उस दिन से मैंने वो बंद कर दिया है और सोचा कि आगे भी बंद रखूंगी कि मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो ये मैंने नेहा से सीखा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है पॉजिटिविटी। मतलब उस समय शी वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट और कीमो चल रही है, आंखें भी दिख रही है उसकी, सब दिख रहा था कि है, लेकिन शी सेड अरे सब भूल जाओ सब अच्छा है, और उस टॉपिक पे उसने बात ही नहीं की। तो मतलब बहुत हेड्स ऑफ नेहू, लव यू, और ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहना। वेरी ट्रू। बहुत ब्रेव, बहुत ब्रेव, एकदम ब्रेव हो। मच। हाय पलक। ग्रेट, कीप इट अप। थैंक यू दीदी, थैंक यू, लव यू दी। हाय पलक, would you like to share something? हेलो नेहा, हेलो एवरीवन। हाय पलक। एक्चुअली पलक मेरी बेटी का नाम है, मैं संजीत हूँ। अच्छा जी। मुझे एक्चुअली पता चला था मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, जो इंदौर में ही रहती है इस समय, गोलू, शायद आप जानते होंगे। इंद्रजीत नहीं, अभी जुड़ी भी है ग्रुप में, इसी में। इंदु अरोड़ा। हाँ यस, वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ, उसी के थ्रू मुझे पता चला था आपके बारे में। तो मेरा ट्रीटमेंट अभी 15 दिसंबर कीमो खत्म हुआ है। तो पूछना था आपसे कि क्या आपका जेनेटिक टेस्ट हुआ था? बरका BRCA, BRCA 1, BRCA 2 हुआ था। वो मेरा अभी सेकंड टाइम में हुआ है, बट वो नेगेटिव आया। ओके। या नेहा, बेस्ट विशेस आपको। हाँ जी। Yeah, definitely.
राइट, इनफैक्ट जो लोग ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट शेयरिंग वन नंबर विद यू. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड देन वी कैन ऐड यू इन ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स दैट वी हैव. Number is I'll just share number here. And Neha, what is that one line message that you want to share with everybody? Live your life fullest. और उसके अलावा कुछ नहीं है. आज जियो और बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो. कल का किसी को नहीं पता, तो जो आज है वो कल शायद अगर बहुत अच्छा रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, और आज अगर हमारा कुछ थोड़ा डाउन रहा है तो उसके लिए हमेशा ये चीज की कल का उससे बेहतर हो सके. तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. थैंक यू सो मच. डिम्पल दी, मेरी मम्मा है शायद यहाँ पे, पता नहीं वो वीडियो ऑन कर है भी कि नहीं. किस नाम से है? रोहित अग्रवाल के नाम से. रोहित अग्रवाल से, जस्ट अ सेकंड. या है रोहित अग्रवाल नाम से. हाँ, मैं चाहती हूँ मम्मा को इंट्रोड्यूस करवा. या बिल्कुल. वो वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? मैंने उनको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट तो भेजा है. इफ शी कैन अनम्यूट, अगर वो कर सकती है तो शी कैन स्टार्ट टॉकिंग. मम्मी कोई है क्या उनके पास में अभी? भैया थे, पता नहीं शायद क्या. तो ओके, ठीक है. वो वैसे भी कह रही थी कि नहीं मैं वीडियो ऑफ करके बैठूंगी. हेलो आंटी जी, शी इज देयर. हेलो 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 नेहा. हाँ मम्मी. हाँ बेटा, बहुत अच्छा रहा सब. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. इतनी ब्रेव है आपकी डॉटर, इतनी बहादुर है. इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी बहुत अच्छे से उसने पूरा जर्नी निकाल लिया. और अरे रोने को थोड़ा ना बोला था. ये तो नया उनका प्यार है तुम्हारे लिए. चलिए चलिए ठीक है. ये तो सबके लिए इतनी हिम्मत देती है सबको. पता नहीं कैसे कर लेती है, बट इतना कुछ सहन करने के बाद में भी सब ऊपर वाले की कृपा है इसके ऊपर. सब ऊपर वाला देख रहा है इसको एकदम बढ़िया. इसको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. आपने नेहा बताती थी कभी जब मैं पहले बॉम्बे में थी कि मैं मम्मी के घर आई भी हूँ. शरद गांधी गली में रहते हैं. तो हाँ, तो आप सबका प्यार है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जब इस जर्नी से निकलते हैं. और आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है कि वो अपने आप ही ठीक हो गई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Hi Shruti, would you want to share something? Hi Dimple. Hi Neha. Dimple, I just want to say I am also connected with Neha. मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे जिससे I am still connected with my heart. And नेहा में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो सारी उसके पेरेंट्स से आई है. आंटी सामने आए, चाची जी सामने आए. So I felt like speaking. नहीं तो मैं भी थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रही थी. But I feel she is completely a strong woman because she has a strong mother standing next right to her. So that's it. And she knows I love her a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shruti di. Anya, love you. It's just wonderful to hear from all of you, and jitna all the blessings and love that's overflowing for Neha. It's just so wonderful that cancer journey हमेशा रोने वाली, हमेशा पेन वाली, हमेशा डिफिकल्ट होना जरूरी नहीं है. एंड ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है कि पेन सबको होता है, दुख सबके पास आता है, बट उस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी हम कैसे उससे सीखते हैं, और उस एवरी डे हाउ वी लिव विद दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो डिम्पल दी, मैं एक लाइन और बताना चाहूंगी. मेरी ट्रीटमेंट में आज भी 2016 से 2022 आ गया. इस बीच में अगर मुझे कुछ भी तकलीफ होती है तो मेरी मम्मी से जब भी मैं शेयर करूंगी तो वो हमेशा पता है एक ही बात बोलेगी, देख मरना लिखा होगा तो मर जाएगी, जीना लिखा होगा तो जी कर जाएगी. तो वो मैं फिर ऐसा सोची, मम्मी चलो ठीक है फोन रखो, मैं बाद में लगाऊंगी. चीजें ऐसी होती है कि जब आपको इतनी पॉजिटिविटी मिल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बात ही खत्म हो गई, वही कुछ बात ही नहीं है करने को आपके पास. वेरी ट्रू. मैं हमेशा इस चीज के लिए हमेशा सबको थैंक यू बोलूंगी
कि जितने भी लोग से मैं जुड़ी हुई हूँ उन सबकी मुझे ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, और हमेशा बस मेरे ऊपर ऐसी उन सबकी दुआएं बनी रहे. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much, Neha. Thank you everybody for joining this Healing Circle talks and creating that space for all of us to share what we shared. And I mean, आज तो नेहा का सर्कल था ना, I knew कि बस मुझे पूरा टाइम एंटर करना है सबको सर्कल में, and that's what I did. So happy to host these sessions every Saturday and meet wonderful souls like you, like many others who share their journey experiences, and this shows that we are all together in this journey. हम सब एक दूसरे के साथ में हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए. And मैंने नंबर शेयर किया है 9930709000. So those who want to join the groups also, आप इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं कि you want to join the group, तो हम आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे. And so that you can connect with each other and learn from each other's experiences and share your insights also. But thank you so much once again for giving me this opportunity to be there for all of you, to host this for all of us, so that we can connect with each other for whatever we are doing with respect to this disease, to be able to contribute in whichever way we can. So thank you so much, and thanks a lot, Neha. Keep up that. Thank you, Dee. Thank you, Dimple Dee. Love you lots. So much. Love you. Bye, everyone. Bye. Bye, everyone. Thank you so much for joining. Thank you.